एचआर जर्नलिस्ट यानी आपको एचआर के सभी फंक्शंस का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको डिटेलिंग के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आपका कंपेंसेशन मैनेजमेंट से लेकर लीगल कंप्लायंसेस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो सभी क्या डिटेलिंग फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप एचआर का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जो जर्नलिस्ट होता है, ये इज टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस, the departments, department heads, and people working inside the organization. They have to support the organization to fulfill the organization's goals. The main objective of HR journalist is to improve organizational performance through the performance of the people. And second objectives is to ensure the availability of required talented manpower. तो ये हो गया एचआर जर्नलिस्ट का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो क्या करता है उसके बारे में। अगर आपको एचआर जर्नलिस्ट के पोजीशन के ऊपर आपको अप्लाई करना है, तो आपको एचआर के सभी फंक्शनल के बारे में उसके कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए एंड नो हाउ, दोनों होना जरूरी है। तभी आप एचआर जर्नलिस्ट के पोजीशन के ऊपर सक्सेसफुली काम कर सकते हो, उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचआर। द सेकंड क्वेश्चन इज एचआर बिजनेस पार्टनर. An HR business partner is a senior HR professional who works closely with the business leader to develop and implement HR strategies that support the organization's overall business objectives. And HR business partner is typically responsible for the aligning HR initiative with the organization's strategic goals and ensure that the HR functions is adding value to business. While we are talking about the HR journalist, there is a hidden agenda that all HR, all the organizational function has to support to achieve the organizational goals. Now, HR business partner is a strategic role. If you understand the HR business partner's role to support the organization's strategic point of view to achieve the organizational goals, here there is a three strategic skills and competence required to become the HR business partners. One skills and competence I can say that is HR journalist. If you are HR journalist, then only you have the knowledge of the all HR functions. आपको अगर HR functions के सभी पहलू के बारे में डिटेल नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हो, तभी आप HR बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। बहुत बार HR बिजनेस पार्टनर्स के बारे में, ये डेजिग्नेशंस के बारे में बहुत से जगह पे मैं पोस्ट देखता हूँ, लिंक्डइन में या फेसबुक में लोग पोस्ट करते हैं, उसमें उसको लिमिटेड टू एचआर फंक्शन सकते हैं। While we are talking about the HR business partner is more than HR. He has to perform more than HR. What is that? तो उसके लिए उसको क्या कॉम्पिटेंस होना चाहिए? तो सबसे पहले एचआर बिजनेस को पार्टनर को एचआर का ओवरऑल नॉलेज, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। He should have very good conceptual knowledge. He should have the know-how about the HR, all the functions. Then second, he should also know whichever organization he's working, उसके बारे में ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि रॉ मटेरियल्स अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका रॉ मटेरियल्स इन से लेके फिनिश गुड आउट तक ओवरऑल प्रोसेस के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। प्रोसेस में जो इन्वॉल्व पीपल्स है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एंड what is expected from there is also they should know, and what are the pain and what is the gain of the each and every process he should know. That is called business acumen. The persons who is having the human resource professional knowledge, along with that you should have the overall business knowledge of the organizations where he or she is working. यानी जो संस्था में आप काम कर रहे हो, वो संस्था का ओवरऑल बिजनेस फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो विभाग है, उसकी जो भी डिपार्टमेंट है, उसकी कामगिरी क्या है, उसमें क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज है, क्या प्रोसेस है, और कौन व्यक्ति महत्व की है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका आउटपुट क्या, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, सब कुछ आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दैट इज बिजनेस एक्यूमेन। एंड नंबर 3, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर पार्टनर, HR हो गया, बिजनेस हो गया, and another one is partner. Partner means you are one of the owner of the organizations. While you are talking about the ownership,
The HR has that partnership mindset and ownership mindset. Okay, I am the owner of the organization. Whatever the gain, whatever the goals, whatever the objectives, the owner of the organization is looking for. HR has to provide the strategic human resource support to achieve that organizational goals. That ownership mindset he should have, that I am the owner of the organization, I have to support to achieve the organizational goals. Then he becomes the HR business partners. So HR business partners, if you want to make the career in the HR business partner, तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आप अच्छा HR जर्नलिस्ट होना चाहिए. You should be expert in the HR journalist. Another is business acumen. You should know what is business strategies, what is the internal business processes, what is happening to business outside and external. You should know overall business knowledge. And another thing is towards strategic ownership mindset. I am the partners. Why? What are the way the owner of the organization looking to their business? Similarly, HR person has to see that. अगर आपके पास ये तीन चीज है, तो you become the next to CEO. You become the business Chanakya. You become the next to the organizational leader. तो दिस इज द रोल ऑफ HR बिजनेस पार्टनर्स. तो उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी जरूरी है. गुड. Now we will go for the third questions. Want to know about the KR and KPI? How to make and implement the KR and KPI? किसने सवाल पूछा था? नाम याद नहीं है. तो what is KR and what is KPI? Normally, KRM is key result area. It is a terms used in the performance management systems and goal setting to describe the most important area of the employee's job that contribute to the success of the organization. यानी कि आपके जो मुख्य जिम्मेदारी है और रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इन दैट, दैट इज कॉल्ड की रिजल्ट एरिया. जो मुख्य जिम्मेदारी आप एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम करते हो, तो आपका जो की रिजल्ट एरिया है, KRA क्या है. और जब KRA के बारे में, जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करते हो, तो आपका जो गोल्स होगा, आपका जो टारगेट होगा, वो आपके की रिजल्ट एरिया से ध्यान में रख के तय किया जाता है. व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द KRA? प्रेजेंट स्टेटस यानी कि आपका की रिजल्ट एरिया. एग्जांपल के हिसाब से यू आर लुकिंग आफ्टर रिक्रूटमेंट, तो यू हैव टू रिक्रूट 100 people for the new organizations within the given date. Till that you have done last year, you have performed the same 100 people's recruitment for the another organizations within 90 days. Now you have to KRA desk, you have to complete within 50 days. So that is target is recruitment of 100 people within 60 days. You should have that goal, target. KRA is what? Recruitment is your key result area. And you have to see that your target is 90 people, यानी कि 90 बंदे को आपको 90 पोजीशंस आपके यहाँ वैकेंट है, खाली है, उसको आपको 60 डेज में रिक्रूट करना है. ये आपका KR है. दूसरा KR हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स के लिए कि मेरे को 4 मैन-डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आई विल कंडक्ट 4 मैन-डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम. यानी कि आपके 100 एम्प्लॉइज होगा, तो हर 100 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 4 मैन-डेज, यानी कि 400 मैन-डेज का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा. उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 मैन-डेज, यानी कि 4 गुणिया 8, यानी कि 32 आवर्स का एवरी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग मिले. एवरेज आपको 32 आवर्स का पर पर्सन आपको ट्रेनिंग देना जरूरी, वो आपका टारगेट बन जाता है. KRA क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज योर KRA. टारगेट इज 4 मैन-डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द ईयर, फाइनेंशियल ईयर. आपने देख लिया, अब तो 31 मार्च तक आपको करना है, तो आपका KR हो गया. बराबर. तो KR इज अ स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड. इसको बोलते हैं स्मार्ट. स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड. तो टाइम स्मार्ट गोल होना चाहिए. The area in the which employee must deliver the result in order to meet the overall objective of the organization. यानी कि आप जब KRA बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करते हो, तब हर एम्प्लॉइज का की रिजल्ट एरिया में से आइडेंटिफाई करना करेगा, जिसमें आप रिजल्ट एक्सपेक्टेड है
वो टारगेट उसको देना पड़ेगा, उसके साथ आपको स्पेसिफिक डेट देना पड़ेगा, और दैट इज बिकम द KRA फॉर द पर्सन, दैट इज बिकम द गोल फॉर द पर्सन। KRA इन द की रिजल्ट एरिया, उसके अंदर जो टारगेट देते हो वो उसका गोल बनता है। तो KPI और KRA वो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सिस्टम्स का एक टर्म्स है, जिसको हम KRA बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज KRA। नाउ व्हाट इज KPI, हाउ टू मेक द इम्प्लीमेंट KRA एंड KPI। KPI stand for the key performance indicator. KPI are measurable metrics used to evaluate the organizational progress towards the achieving the goals and objectives. यानी कि आपने 4 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम 31 मार्च तक आपने अचीव किया कि नहीं किया, वो कैसे पता चलेगा? तो आपके पास ट्रेनिंग अटेंडेंस का डेटा होगा, उसका सीट होगा या ट्रेनिंग अटेंडेंस सीट है, वो आपका मेजरिंग टूल है कि उसके आधार पे हम लोग तय करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे कि आपने एवरेज 4 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया कि नहीं किया, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। अगर आप मोटरसाइकिल पे एक रोड पे जा रहे हो, आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड, सामने वालों को पता कैसे चले, हाउ वी कैन नो दैट यू हैव अचीव योर टारगेट, दैट इज कॉल्ड KPI, की performance indicator. Okay, so KPI are typically established for the specific area of the organization such as department, terms of individuals and used to be performed। यानी कि आपका जो KRA, जो कॉर्पोरेट KRA होते हैं, तो कॉर्पोरेट KRA में हम तय करते हैं कि भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन का अभी 500 करोड़ का टर्नओवर है, नेक्स्ट ईयर आई वांट टू अचीव 30% ग्रोथ इन द टर्नओवर। तो 150 करोड़ एडिशनल मेरे को करना है, 650 करोड़ का टर्नओवर का एक टारगेट रहेगा 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर का। तो 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर मैंने 650 CR का टर्नओवर किया कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा? व्हाट शुड बी द KPI? KRA कर दिया कि टर्नओवर इज द KRA, टारगेट इज 650 CR। नाउ व्हाट इज KPI? KPI आई हैव टू सी दैट सेल्स बुक या स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस, उसके आधार पे मेरे को पता चलेगा कि 650 करोड़ का टोटल होता है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यानी कि मैंने जो टारगेट गोल सेट किया है वो अचीव हुआ कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? हाउ आई कैन वेरीफाई दैट वेदर यू हैव अचीव्ड और नॉट। तो उसका जो मेजरिंग फैक्टर्स है, मेजरिंग यूनिट है, उसको बोलते हैं KPI। KPI can be used to measure a wide variety of organizational objectives, including financial performance, customer satisfaction, employees engagement, productivity। यानी कोई भी आप गोल तय करते हो उसके साथ इसका कनेक्शन हो सकता है। यस कविता, तो आपने सवाल पूछा, थैंक यू। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में आपको बताता हूं कि हाउ टू इंप्लीमेंट KRA एंड KPI। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति क्या है, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज द पीपल्स एजुकेशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द KRA KPI। वहां पहले कोई एग्जिस्टिंग कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम चल रही है या नहीं चल रही है, उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो भी सिस्टम्स है वो प्रॉपरली रन नहीं हो रही है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, जस्ट कागज पे होता है, तो पहले तो आपको KRA KPI में आपको बता दूं कि इट्स नॉट दैट इजी कि आप कल से इंप्लीमेंट कर लो, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है बड़ी लंबी है, और उसका जो मेजरमेंट है एकदम ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव मेजरिंग फैक्टर्स होता है, तो सामने वाले जो एम्प्लॉइज है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपके यहाँ टॉप मैनेजमेंट स्ट्रांगली इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग विलिंग नहीं है, तो आपका KRA KPI का जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से वो फेल हो सकता है। क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल्स विल हैव द डिपार्टमेंट्स एंड क्रॉस फंक्शनल ग्रुप, उसको पता चलेगा कि भाई हमारा KRA KPI अगर इंप्लीमेंट होगा तो मेरे को स्पेसिफिक रिजल्ट देना पड़ेगा, वो मेजरेबल होगा। अगर मैं परफॉर्म करेगा तो भी मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, या मेरी सैलरी रिवाइज होगी। तो अभी तक जो उसको ऐसे ही परसेप्शन बेस पे अगर KRA KPI कुछ नहीं था तो उसको 10%, 12%, 15%, 20% इंक्रीमेंट मिल जाता था,
वो बंद हो जाएगा। जो परफॉर्म करेगा उसको मिलेगा, और व्हाट इज गोइंग टू बी मेजर, दैट इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। तो उसके लिए आपको एक पूरा कल्चर चेंज लाना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस। आपको लगता है कि कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो बेसिक एकदम सिंपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम चालू कीजिए। KRA KPI नहीं करिए। मैं जहां जहां कंसल्टिंग करता हूँ, HR कंसल्टिंग करता हूँ, तो वहां क्या होता है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। मैं सभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मेरे को बहुत अच्छी जानकारी है, फिर भी मैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट सिंपल शुरुआत में परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, यानी कि जिसमें एट्रीब्यूट्स होता है, 10 एट्रीब्यूट्स होता है। जैसे एग्जांपल के हिसाब से अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी, जॉब नॉलेज एंड आउटपुट, कोऑपरेशन, मटेरियल हैंडलिंग स्किल, सेफ्टी, क्रिएटिविटी, काइंड ऑफ 10 मैं एट्रीब्यूट तैयार करता हूं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इस सब के ऊपर उसको सेल्फ अप्रेजल करने को बोलता हूं। उसके बाद में उसके HOD के पास से अप्रेजल करता हूं। उसके हिसाब से हम मेरिट जो भी आता है उसके बेस के हम लोग देखते हैं कि बेल कर्व का पूरा प्रोसेस है वो करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी स्टार्ट द गिविंग द इंक्रीमेंट। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर पीपल विल बी अंडरस्टूड दैट कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बेस पे ही हमको इंक्रीमेंट या प्रमोशन या सैलरी रिवीजन होगा। तो वो टाइम में 1 साल में हम लोग उसको तैयार करते हैं। हमारा जो KRA KPI जो सिस्टम से, उसके बारे में सबसे पहले आपको मैनेजमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा, हमको सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। तो KRA KPI का सिस्टम इंप्लीमेंट करने से पहले वो इंप्लीमेंट करने के लिए राजी हो जाए। उसके बारे में कुछ कोर एम्प्लॉइज हो गए, जो HODs हो गए, उसको उसकी सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा, अवेयरनेस देना पड़ेगा। वो अवेयरनेस देने के बाद आपको एक कोर टीम मिलके, मैनेजमेंट के साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशंस का SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा। What is strength, what is weaknesses, what is opportunity, and what are the threats. Based on that, आप तय कर सकते हो कि what is the strength that can be encased, what are the weaknesses that can be eliminated or reduced, what are the opportunities that can be availed, and what are the threats, how to safeguard the threats. उसके आधार पे आप ऑर्गेनाइजेशंस का एक गोल तो होता है सबका, टू मेकिंग मनी। मेकिंग मनी के लिए, यानी कि पैसा बनाने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो उसका एक गोल तो होता है कि पैसा बनाना है। तो पैसा कैसे बनाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर में ग्रोथ होता है। उसके साथ साथ आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ करने के लिए यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। आपका तो कॉस्ट रिड्यूस करो, टर्नओवर सेम टू सेम रखो, तभी आपका ग्रोथ होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। आपका कॉस्ट इतना ही रहो और आपका टर्नओवर बढ़ जाए तो अभी आपका प्रॉफिट होगा। आप दोनों करो तो और प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो being a HR professional, being a top management, you have to see that the only one goal to making money, और उसके लिए ग्रोथ करना है और कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो उस बेस पे आपको SWOT एनालिसिस करना है। SWOT एनालिसिस के हिसाब से आपको 7-8 कॉर्पोरेट KRA तय करना है। कॉर्पोरेट KRA के बेस के ऊपर डिपार्टमेंट में, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का रोल होता है कि वो कॉर्पोरेट KRA अचीव करने के लिए as a HR department, as a production department, as a maintenance department, as a purchase department, what is my role, what will be the my KRA, उसको टारगेट्स एंड गोल सेट करना है। डिपार्टमेंटल गोल सेट होता है, देन बेस्ड ऑन दैट इंडिविजुअल व्यक्ति का भी, डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं उसका अलग अलग गोल सेट होता है। वो आपने पूरा एक फ्रेमवर्क हो गया। तैयार हो जाने के बाद यू हैव टू हैव दैट रिव्यू का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। पहले तो सबको गोल कैसे सेट करना उसके बारे में ट्रेनिंग देना पड़ेगा। देन यू हैव टू हैव द क्वार्टरली रिव्यू सिस्टम, यानी कि हमने जो एनुअल KRA तय किया उसके सामने क्वार्टरली कहाँ अचीव किया, कौन सी डेट पे हमको प्रोग्रेस पूरा एफर्ट्स प्लान बनाना पड़ेगा, टाइम चार्ट बनाना पड़ेगा। वो हिसाब से आपको क्वार्टरली रिव्यू करना है और उसके आधार पे आपको पता चलेगा कौन से डिपार्टमेंट में इंप्रूव करने की जरूरत है, किसको सपोर्ट करने की जरूरत है, कौन बहुत अच्छा चल रहा है। बेस्ड ऑन दैट एनुअल, इफ यू अचीव द KRA, then the people will be rewarded, and that rewards you have to declare when you are declaring the KRA KPI for your organization, for your department and for the people. तो वो पूरा implementation process है
लेकिन आप हाफ हार्टेडली, हाफ प्रिपेयर होकर अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो बाद में उसको वापस सेल करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट यू हैव टू सेट द माइंडसेट ऑफ द पीपल फॉर दिस सिस्टम, बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट. पीपल ऑलवेज वांट दैट के दे विल रिजेक्ट दिस सिस्टम्स, बिकॉज उसको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है. टाइम के साथ स्पेसिफिक मेजर में करना पड़ेगा, इसलिए तकलीफ होती है लोगों को. तो ये KRA का प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको वैसे प्रॉपरली प्लान करके समझ के पहले तो टॉप मैनेजमेंट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उसके बाद में HODs को सबको अवेयर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा. देन यू हैव टू हैव दैट SWOT एनालिसिस, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कॉर्पोरेट गोल, देन दैट कॉर्पोरेट गोल विल बी कास्केडेड, यानी कि उसका हर डिपार्टमेंट के हिसाब से उसका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा. वो होता है KRA KPI का सिस्टम्स. ओके सर, या बोलो. सर, इज देयर एनी फिक्स फॉर्मेट और कुछ ऐसा कि ये चीजें होनी चाहिए? बिकॉज जो मैंने अभी फील किया मेरी लास्ट इसमें जो एजेंसी थी वो एवरी पर्सन का एक अलग KRA बनाती थी कि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसका KRA अलग है, फिर उसके बाद हमारा कोई मास्टर है तो उसका KRA अलग है. तो ये KRA इंडिविजुअल बनते हैं हर एक का, या एक डिपार्टमेंट का एक KRA होता है? मैं आपको वापस बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ. देखो, पहले तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सबका मेन ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने की. राइट. बराबर है. तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है वो समझना है पहले. और मेरा जो भी एफर्ट्स है, मेरा जो रूटीन काम जो आप करते हो, वो रूटीन काम को आपको ऐसा स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा कि उसमें की परफॉर्मर इंडिकेटर, की रिजल्ट एरिया क्या है वो आपको समझना है. कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को 20% 30% उसको बिजनेस टर्नओवर बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा. प्रोडक्शन बनाने के लिए कुछ मशीन नहीं लानी पड़ेगी, या मार्केटिंग में ध्यान देना पड़ेगा. तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा. HR का काम क्या रहेगा कि HR हैज टू रिक्रूट द पर्संस ऑन टाइम. He has to see that the retention of to be improved in the organizations. तो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ कनेक्टेड होगा. तो मेरा आपको शॉर्ट में जवाब है कि पहले तो कॉर्पोरेट का गोल होगा, कॉर्पोरेट है कि कंपनी का गोल होगा. कंपनी का गोल के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट का गोल होता है. और डिपार्टमेंट का जो गोल होता है, एग्जाम्पल के साथ HR का गोल है, मैं HR में काम कर रहा हूँ, आप HR में काम करते, तो आपको इसके हिसाब से सीधी समझाता हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि वे 5,000 करोड़ का टर्नओवर करना है. 4,000 से 5,000 करोड़ का टर्नओवर करना है. तो वो उसका बड़ा गोल था. इसको बोलते की ऑब्जेक्टिव था, उसका की रिजल्ट एरिया बोलते थे. उसके साथ में OKRA होता था, उसको सपोर्ट के लिए ऑब्जेक्टिव KRA होते थे. तो उसको एक नया यूनिट डेवलप करना पड़ता कि दे हैव टू स्टार्ट न्यू फैक्ट्री विद इन 6 months. तो ये 2 KRA ऐसा था कि उसमें बीइंग HR प्रोफेशनल आई हैव टू सी दैट आई हैव टू रिटेन एम्प्लॉय. जो रिटेंशन वैल्यूज है उसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा. अभी मेरा पास 15% टर्नओवर रेशियो है, तो मेरे को इसको 10 पे लाना था. तो वो मेरे को ध्यान रखना पड़ता. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, न्यू यूनिट जो मेरे को 6 months में चालू होना था, तो एटलीस्ट विद इन 5 months, यानी 5वें महीने में मेरे को एक टीम को तैयार करना है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग यूनिट में उसको ट्रेन करके वो ये चालू हो, उसके लिए रेडी टू वर्क करना था. तो 2 KRA मेरा HR डिपार्टमेंट था. अभी HR डिपार्टमेंट में हम लोग 4 लोग काम करते थे. एक तो रूटीन HR का जो रिटेंशन के लिए एम्प्लॉयज ग्रीवेंस रिड्यूस होना है, उसको सपोर्ट करना है, मोटिवेशन करना है, उसकी जिम्मेदारी होगी भाई तेरा ये काम है, रिटेंशन मेंटेन करना है. एक दूसरा लड़का था, उसका काम करने कि तेरे को रिक्रूटमेंट का 100% 5 महीने में कैसे भी रिक्रूटमेंट करना है. और साथ साथ मैं और मेरे साथ दूसरा जूनियर था, उसको बोला कि आपको नया ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेन एंड डेवलपमेंट करना है. तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो गया, डिपार्टमेंट का गोल हो गया, और सबका इंडिविजुअल गोल भी हो गया. तो ऐसे हो सकता है, लेकिन बहुत सी जगह पे कंसल्टेंट एक्सपीरियंस नहीं होते, किताब पढ़ के आपके पास आते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, वो कैंडिडेट को पूछते हैं. मेरे को कैंडिडेट को पूछते हैं कि आपका KRA क्या है, आपका गोल क्या है. तो अलाइन नहीं होगा तो क्या होगा, सभी लोग अपनी अपनी मर्जी से एफर्ट करेंगे, खूब बिजी रहेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होगा. तो ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट अचीव देयर डिजायर्ड गोल्स. यही मैं आपको कह रही हूँ सर, जो कंसल्टेंसी थी
वो आई, उन्होंने हर एक बंदे से पूछा आपका डेली रूटीन क्या है, आप क्या करते हो। मॉडल ने कहा मेरा शूट का काम होता है, मैं आती हूँ, मैं शूट कर जाती हूँ। कैमरामैन कहता है मेरा काम क्लिकिंग का होता है। हाँ, जो हेल्पर है वो कहता है भैया हमारा काम चेंज करवाने का होता है। ये मेरा एक डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स में गए, उन्होंने कहा भाई हमारा काम ये है, सेल परचेज की एंट्री करना है, कुछ बैलेंस बचा है एडजस्टमेंट एंट्री मारनी है, किसी से लेना है देना है। तो वो तो उनका रूटीन काम है। क्या ये रूटीन काम KRA yes. का पार्ट हो अभी सकता है? अभी अभी ये रूटीन काम है ना, अभी हम्म, रूटीन काम में आपको पूछना है कि आउट ऑफ दिस वर्क व्हाट इज रिजल्ट मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग। धरो कि आपका एक कटिंग का मास्टर का काम है, तो उसका है कि भाई आपका रिजेक्शन परसेंटेज क्या है। कि मेरा 20% है, तो हम्म, उसका क्या होगा कि आपका रिजेक्शन टू बी रिड्यूस बाय 10%, यानी कि 20 की जगह 10% लेके आना है, तो वो उसका KRA बन जाएगा। बराबर। तो दूसरा कोई डिजाइनर है, तो उसको बोले कि आपका डिजाइनर्स जो है, आपकी डिजाइन का एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, कितनी रिजेक्ट, आप 10 बार डिजाइन बनाते हो तो एक बार सिलेक्ट होते हैं, तो आप 5 बार बनाओ वो सिलेक्ट हो जाए, वैसे कुछ कीजिए तो टाइम एंड मनी सेव होता है। या कोई व्यक्ति को डिजाइन बना में 10 दिन लगता है, तो उसको 5 दिन में डिजाइन बनाओ। वो उसमें परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए देयर इज बिकम द KRA। तो होता है कि रूटीन की एक्टिविटीज है, एरिया जो आपने पता है जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे होता है, लेकिन उसमें क्या रिजल्ट अचीव करना है कि हम लोग की रिजल्ट एरिया में से टारगेट को ढूंढना है, सर, टारगेट को ढूंढना है, तो किसी को बंद करके करना है। कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं सर जिसमें हम, जैसे आपने बताया डिजाइनर का हो गया, मास्टर का हो गया, हाँ, अकाउंट्स वालों को भी हम कह सकते हैं कि भाई आप जो रिकवरी है वो फास्ट करो, सेल्स वालों को हाँ, टारगेट दे सकते हैं। बट कुछ पोस्ट ऐसी होती है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, हाँ, उनका तो क्या है, उनको जो आएगा वो उन्हें फीड करना है कंप्यूटर में। नहीं ऐसे उसका भी उनका KRA की होता है। रिजल्ट एरिया, हाँ, उनका KRA हम कैसे बनाएंगे। हाँ, मैंने जैसे आपको मेरे हेल्पर हो गए, उनका काम है माल लाके मॉडल्स को देना। यस, मेरा इन्वेंट्री वाला है, उसको गोडाउन से माल लाके देना है शूटिंग डिपार्टमेंट में, और शूटिंग डिपार्टमेंट से वापस गोडाउन में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ऐसा है कि जितना उनको मिलेगा वो उसमें क्या इम्प्रूव करवा सकती हूँ मैं उसमें। यस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो KRA KPI की हम जो बात करते हैं, वो मेजोरिटी स्टाफ लेवल के लिए है, सुपरवाइजर अप टू सुपरवाइजर लेवल के लिए है, और ऑफिस में असिस्टेंट लेवल के लिए है। ऑफिस स्टाफ के लिए आप हो सकते हैं, तो नॉर्मली KRA में क्या क्या कवर हो सकते हैं, आप कैसे KRA सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो रूटीन जो वर्क है उसमें इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हो। कोई भी व्यक्ति रूटीन वर्क करता है, उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है। इंप्रूवमेंट्स में आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सकती है, आपकी टाइमली डिलीवरी हो सकती है, हाँ, क्वालिटी ऑफ वर्क में इंप्रूवमेंट हो सकता है। बराबर। उसके साथ में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या लेगा। हाँ, जो कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर है, 5 साल हाँ, से डेटा एंट्री ऑपरेट करेगा, तो उसको पूछ सकते हैं कि ये साल में आप कौन सा नया फंक्शन आप रोल आप सीखेंगे। उसका सेल्फ डेवलपमेंट का गोल हो जाएगा, और हाँ, उसको इंडिपेंडेंटली 6 महीने में 1 साल में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हाँ, तो वैसे आप हर इंडिविजुअल का भी आप SWOT एनालिसिस कर सकते हो, इंडिविजुअल वर्क का भी SWOT एनालिसिस कर सकते हो, डिपार्टमेंट का कर सकते हो, जैसे हमने कॉर्पोरेट का किया। समझिए। तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली में आप मेरे को भेज सकते हैं, और मैं आपको गाइड करूंगा। और मैंने बहुत सी कंपनीज में सिंस 2002 से KRA बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल करूंगी। गुड न्यूज, मैं अपनी जॉब चेंज कर रही हूँ। गुड डिजायर गुड। लेकिन मेरे डिजायर को वो लहंगा का फोटो नहीं भेजा आपने। नहीं सर, मैं बता रही हूँ, उसमें मैंने अपना खुद का काम भी शुरू कर दिया है। क्या बात है। अब आप ऑनलाइन मेरे से खरीद सकते हैं। श्योर श्योर। और मेरे को डायमंड इंडस्ट्री में काम चाहिए था, डायमंड इंडस्ट्री से आज ही ऑफर लेटर आया है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, थैंक यू। तो हमको मिठाई खाना पड़ेगा आपके पास से। बिल्कुल सर, आइए। श्योर श्योर। सो ओके, द KRA KPI के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया होगा क्या आपको, कविता? इज ओके, गुड। यस सर। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। किसी ने सवाल पूछा है, प्रार्थना जी ने सवाल पूछा है। she has asked that in job change in a new company how to start performance management systems। तो जैसे मैंने आपको KRA KPI के बारे में बताया, उसको ही थोड़ा एलोबरेट करता हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हो, तो वो सिस्टम्स क्या प्रैक्टिकली चल रहा है उसके बारे में आपको समझना है।
वहां के लोग के बारे में समझना है, उसका मैनेजमेंट के बारे में समझना है कि मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो आपको समझना जरूरी, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो आर द पीपल इन्फ्लुएंसिंग टू द मैनेजमेंट। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने हर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिल जाते हैं कि वो मैनेजमेंट के ऊपर हावी बनते हैं, वो मैनेजमेंट उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात ही कहती सुनता है, वो करते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजमेंट माइंडसेट। वो सब समझने के बाद आप कौन सी प्रोसेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो क्या सिस्टम है, अगर कोई भी सिस्टम नहीं है पीएमएस सिस्टम, तो आपको बेसिक सिस्टम से आपको शुरू करना पड़ेगा। और बहुत सी मेरा पीएमएस का जो एक पूरा सेशन रहता है, उसमें हम समझा दें कि कितने हमारे टाइप की सिस्टम से उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इधर आपको जो भी बेसिक सुटेबल आपके एम्प्लॉइज का नॉलेज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन बेस के ऊपर जिसको आप कन्विंस कर सकते हो, जिसका आपको सपोर्ट मिल सकता है, वो हिसाब से उस सिस्टम आइडेंटिफाई करके उसको इंप्लीमेंट करना है। उसके बारे में आपको अवेयरनेस देना है, सबको जानकारी देना है कि भाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम करते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन के साथ उसको जोड़ोगे तो लोग आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यू हैव टू सी दैट दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल टू द योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स। उसके बेस पे हम लोग जेन्यून डेटा आएगा तो हम आपके लिए डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं, आपका पोटेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। फ्यूचर में मेरे को आपको नेक्स्ट लेवल पे आपको करियर बनाना है, नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करना है, तो आपको क्या नीड ऑफ ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट नीड है, वो हम आइडेंटिफाई करके आपको हम आगे के लेवल पे ले जाते हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। Then one of the objective that the increment and salary revision, तो one of the objective out of more another objectives, okay? उससे आप अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसका भी इवोल्यूशन कर सकते हो, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भी इवोल्यूशन कर सकते हो, और लास्ट ईयर जो काम किया है और इस ईयर जो काम किया है, जो कौन से लोग हैं जिसको ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ इसमें इवेल्युएट कर सकते हो। तो आपको अच्छी तरह से इसको शेयर करना पड़ेगा, उसको अवेयर करना पड़ेगा। देन यू हैव रिक्वायर वंस दे आर एग्री दैट ओके वी कैन गो अहेड, देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी प्रोसेस, देन ट्रेन द पीपल, स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशंस। इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होने के बाद वो क्या है प्रोसेस का आपको रिव्यू करना पड़ेगा, और फाइनली यू कैन इंप्रूव ऑन इट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेशंस। लेकिन डिटेल में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट करके या गूगल करके कुछ डॉक्यूमेंट्स करके आप इंप्लीमेंट करोगे तो क्या गलत इंप्लीमेंटेशन होगा तो बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। तो यू शुड हैव द वेरी गुड नॉलेज अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। इफ यू रिक्वायर एनी असिस्टेंस यू कैन कॉल मी, यू कैन टॉक मी। नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। What is 9-box concept in HR function? How to do implementation? योगेश मोरे ने मेरे को सवाल पूछा है। तो 9-box concept is HR function is a performance management tools used to evaluate the developed employees based on their potential and performance. It is typically used to identify key talent and provide insight into the development needs of the employees. यानी कि आपके यहाँ इसको पोटेंशियल अप्रेजल भी बोल सकते हैं हम लोग, जो जिस इज यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। कि अभी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उसको 9-box कंसेप्ट के हिसाब से आप इवेल्युएट करो, और बेस्ड ऑन दैट वो उसका फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान आप बना सकते हो। तो उसके लिए 9-box ग्रिड इज द मैट्रिक्स दैट कैटेगराइज एम्प्लॉइज इनटू वन ऑफ 9 boxes बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। द वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट an employee's potentials, and which is the ability to take to the new challenges and grow within the organization। यानी कि वो व्यक्ति में potentials यानी कि inner skills, soft skills के साथ साथ leadership skills है, वो सब behavioral aspect ज्यादातर होता है, तो उसको बोलते हैं potentials। and the horizontal axis is employees perform, which is how well the have the performance in their current role, यानी कि अभी जो existing performance क्या है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो आपको अगर आप ये 9-box का जो कंसेप्ट है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर डेटा होना जरूरी है। तो आपके पास ऐसे तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें लीडरशिप पोटेंशियल लेफ्ट साइड पे है, ऊपर का जो बॉक्स है लेफ्ट लीडरशिप पोटेंशियल में हाई रेटिंग्स दिखाता है,
और नीचे का लिमिटेड यानी कि लो, बीच वाला मॉडरेट दिखाता है। सिमिलरली जो डाउन वाला है उसमें परफॉर्मेंस दिखाता है पुअर टू आउटस्टैंडिंग, यानी कि इधर 9 मैट्रिक्स आपको बता रहे। मैनेजमेंट ग्रिड थियरी के बेस के ऊपर इवेल्युएट हुआ, जैसे जिसने मेरा एम्प्लॉइज मैनेजमेंट का ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, उसमें मैनेजमेंट ग्रिड थियरीज में 1.1 से लेके 9.9 तक का ये कंसेप्ट है। तो हियर आपके पास सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए कि ये दिस इज नॉट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो आपका डेटा है, एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस का एचआर के पास जो भी डेटा है, उसके बेस के ऊपर किसी व्यक्ति का पोटेंशियल अप्रेजल करना है कि वो वेयर वी हैव टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल, उसके लिए यूज होता है। तो पहले तो आपके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या कोई भी आपके पास सिस्टम है, उसके पास से एम्प्लॉइज का जेन्युइन परफॉर्मेंस डेटा होना जरूरी है। दैट इज बेस्ड ऑन दैट यू कैन पुट द परफॉर्मेंस लेवल कि भाई पुअर है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है, और उसके बेस में आप डिसाइड कर सकते हो उसको कहाँ रखना है। बराबर, आउटस्टैंडिंग है तो लोअर में रखना है, और उसमें भी लिमिटेड, मॉडरेट और हाई, यानी कि लीडरशिप पोटेंशियल क्या है, दोनों मिलता है तो वो हिसाब से वो व्यक्ति को कहाँ रखना है आप तय कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपके पास परफॉर्मेंस डेटा है, अवेलेबल है हर एम्प्लॉइज का। दूसरा, आपको लीडर पोटेंशियल यानी कि लीडरशिप पोटेंशियल यानी कि एम्प्लॉइज का बिहेवियर पोटेंशियल क्या है, तो उसके लिए आप कंपिटेंस मैपिंग करवा सकते हो, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करवा सकते हो, इंडेक्स बॉक्स एक्सरसाइज करवा सकते हो, यानी कि कंपिटेंस मैपिंग का डिफरेंट टूल्स है, और कोई भी एक टूल से कंपिटेंस मैपिंग नहीं होता है। कोई भी एक कंपिटेंस के लिए मिनिमम 2 टूल्स होना चाहिए, तो उसको असेसमेंट सेंटर टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो असेसमेंट सेंटर टेक्नोलॉजी के बेस पे आप लीडरशिप पोटेंशियल आप आइडेंटिफाई करो, और आपके पास परफॉर्मेंस डेटा है तो सबसे पहले आप परफॉर्मेंस डेटा के हिसाब से वो उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है वो उसको वहां एम्प्लॉइज का लिख दीजिए नाम, उसके सामने उसका पोटेंशियल अप्रेजल आता है वो हिसाब से लिख दीजिए। तो बेस्ड ऑन दैट आप तय कर सकते हो कि पुअर परफॉर्मेंस एंड लिमिटेड पोटेंशियल जो है वो इधर आएगा, यानी कि उसका परफॉर्मेंस भी पुअर है और पोटेंशियल भी नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा वो व्यक्ति या तो आपको रॉन्ग रिक्रूटमेंट ऐसे आप मान सकते हो। देन पुअर परफॉर्मेंस एंड मॉडरेट पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल है, वो आदमी लेफ्ट से राइट तक ड्राइव कर सकता है, लेकिन उसका न्यू रोल में आप कर सकते हो या उसका ट्रेनिंग की जरूरत है, वो हिसाब से आप उसको मॉडरेट पोटेंशियल लेवल पे उसको लेके जा सकते हो। देन हियर गुड परफॉर्मेंस बट लिमिटेड, ही इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, यानी गुड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका पोटेंशियल नहीं, अभी का रोल के लिए परफेक्ट है, गुड आउटस्टैंडिंग नहीं है लेकिन गुड है, लेकिन उसका लिमिटेड पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल कैसे इंप्रूव किया जाता है, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि वो आगे ग्रोथ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हियर गुड परफॉर्मेंस एंड मॉडरेट पोटेंशियल, ये परफॉर्मेंस भी अच्छा है, मॉडरेट पोटेंशियल है, तो उसको और मोटिवेट करके ट्रेनिंग देके एक्सचेंज लेवल पे आप लेके जाने की कोशिश कर सकते हो, तो इसमें पोटेंशियल है। देन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बट लिमिटेड परफॉर्मेंस, यानी कि ही इज द वेरी गुड गाय, व्हाटएवर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी गिवन टू ही मार देता है, उसको बोलो चक्का मारना मार देगा, लेकिन आगे का सोचेगा नहीं, उसके पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, लीडरशिप नहीं है, उसको जो बोलेगा वो करेगा, तो उसमें वो लीडरशिप पोटेंशियल नहीं, तो उसको पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा, या कोई भी कारण होगा कि उसके कारण उसका बिलीफ लेवल में जाके क्या वीकनेसेस है, पोटेंशियल्स है, तो उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देके आगे बढ़ा सकते हो, तो वो उसका ए ग्रिड में आता है। देन His poor performance but high potential, he is performing poor, but आपका appraisal systems में आता है कि he has very good potentials, he is very good leadership skill, तो उसका कारण क्या है, मैनेजमेंट के साथ कुछ तकलीफ हो गई है, उसका बॉस के साथ जमता नहीं है, या उसका एनवायरनमेंट सही नहीं है, और उसका जॉब प्रोफाइल सही नहीं है, उसको जॉब प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन he has the very good potentials but not performing to what to do, that management has to go in the detailing, and उसके आधार पे आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। Then good performance, high potential, he has very good performance and potential भी बहुत अच्छा है, तो वो व्यक्ति को और इम्प्रूव कैसे किया जाता है, तो उसको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में आप लेके जाने के लिए
क्या कमियां हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं, या ज्यादा मोटिवेशन दे सकते हो, तो ही कैन मेंटेन द हिज परफॉर्मेंस और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में हियर ऑल्सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बट मॉडरेट पोटेंशियल्स। पोटेंशियल्स सही है, मॉडरेट है, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग कर रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसमें पोटेंशियल्स कैसे इंप्रूव किया जाता है, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स या उसके लेवल पर्सनल कोचिंग से वो सब आप टूल्स आप इंप्लीमेंट करके, ये आपको आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसमें कर सकते हैं। एंड देन अनदर इज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड हाई पोटेंशियल्स। दिस पर्सन्स टू बी रिटेन इन द ऑर्गेनाइजेशंस, उसको कोच करना पड़ेगा, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसको मोटिवेट करके हाउ ही कैन ट्रेन अदर पीपल, उसके लिए उसको डेवलप करना पड़ेगा कि उसके जैसा दूसरे को कैसे तैयार करें, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा 9 बॉक्स मैट्रिक्स है। 9 बॉक्स मैट्रिक्स इज द पोटेंशियल अप्रेजल्स एंड एम्प्लॉइज डेवलपमेंट प्लान के लिए आप यूज कर सकते हो। उसमें आपको 2 डेटा लगता है, नंबर 1 इज द एम्प्लॉइज द परफॉर्मेंस डेटा है, दूसरा उसका पोटेंशियल यानी कि बिहेवियर अप्रेजल्स, कंपिटेंस मैपिंग, उसका आपको डेटा आपको करना मिलना है। दोनों मिला के मर्ज करके वो व्यक्ति कौन से लेवल पे आता है, कोई व्यक्ति का परफॉर्मेंस पोटेंशियल है अच्छा है तो परफॉर्मेंस डाउन है, तो दोनों के कैसा आप मैक्सिमम एम्प्लॉइज डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, उसके आधार पे ये 9 डॉट मैट्रिक्स